Okay, we'll start our chapter. It's page number 118, Web Development, Unit 6, page number 118, the basic terminologies of web development. You can unmute your mics as well to ask any question. I'm not muting you all. It's up to you. If you have any question in between, you can ask me by unmute yourself. Now, web development, the first web development is about the different making of different websites, web pages. And these are the different terms used for, you must know about the websites, web development. First is the World Wide Web, and you know that World Wide Web is the connection of all the computers around the world to each other. ठीक है. The web is a collection of computers connected through a network to provide publicly accessible information, like you can communicate with each other, you can transfer your information from one place to another. So it's easy, it's convenient for you to communicate with a person far away from your side. So and by World Wide Web we can connect to anywhere around the globe, right? World Wide Web, the connection of all the computers to each other by using any service, right? Now the web page and website. What is the difference between web page and a website? They both are different. Web page is the first page, only first page. A web page is a document commonly written in HTML that is accessible through internet by using internet browser. आप जब अपना वेब कोई भी वेबसाइट खोलते हैं उसका जो फर्स्ट पेज होता है उसको हम वेब पेज भी कहते हैं, प्लस दिस वन द होम पेज होता है वो पहला पेज. अ होम पेज ऑल्सो नोन एज लैंडिंग पेज that serves as the starting point of the website. आप सब ने ही ब्राउज़र यूज़ किए हुए हैं. जब हम आगे एक्सेस करते जाते हैं, न्यू पेजेस खोलते जाते हैं सेम वेबसाइट पर, तो हम क्या करते हैं कि उस वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस ओपन करते हैं. वो डिफरेंट पेजेस ओपन करके जब हमें दोबारा टू द फर्स्ट पेज, वी वांट टू मूव टू द फर्स्ट पेज, वी गो टू द होम पेज, एंड दैट होम पेज इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ योर वेबसाइट, right? And web page is a document commonly written in HTML. Now what is the difference? I'll explain it here. एक वेबसाइट आपने ओपन की, वेबसाइट ओपन करके आपने वहाँ से दूसरी उसी वेबसाइट पर रहते हुए दूसरी हेडिंग पे जंप किया आपने, ठीक है? तो आपका फर्स्ट पेज वो भी आपका वेब पेज है, जिस हेडिंग पर आपने जंप किया है, जिस दूसरी हेडिंग पे जंप किया है वो भी आपका वेब पेज है. लेकिन होम पेज क्या है? होम पेज आपका सिर्फ फर्स्ट पेज है, जो आपका बिगिनिंग है, जो आपकी इंट्रोडक्शन है, दैट इज़ योर होम पेज. Now, the website is the collection of web pages. All the web pages, all the information on that particular website is a collection of different web pages containing text, images, and all type of multimedia related to a specific set of information. A website can be accessed through at uniform resource location. What is URL? A URL is an address, the address of your website, right? See, this is the address. This is a complete website, right? This is a complete website. These are the different web pages included in this website. Page number 1, page 2, page 3, page 4, page 5. All the pages included in this particular website is known as, these are the web pages, and this is a website. It's a collection of all web pages. This is the home page. The first page of your website is the home page. All the headings are the pages, web pages, and this is a website. And this address, this particular address is a URL, right? URL means Uniform Resource Location. वो लोकेशन जहाँ से आपकी वेबसाइट लॉन्च हुई है, जहाँ से आपकी वेबसाइट ओपन होगी, दैट इज़ योर URL, यानी आपकी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन. ठीक है? So World Wide Web, web page,
And website. Website is the collection. Web page is a single page. Home page is the first page of your website. And World Wide Web is a collection of all computers connected to each other. Now come to the, this is the uniform resource location. It is the address of a resource on the internet. आपके particular address, किसी भी जगह का address, ठीक है. ये पोर्टल है जहाँ से हम यूज़ करेंगे, अपनी वेबसाइट को लॉन्च करेंगे और लोकेशन इसकी ये हम डिफाइन करेंगे कि किस लोकेशन पर हमारी वेबसाइट लॉन्च है. तो URL is the address of your website. Web browser is a software application for accessing in websites on the world wide web, जो जहाँ से हम सर्चिंग करते हैं, जहाँ से हम कंप्यूटर एक्सेस करते हैं इंफॉर्मेशन, दैट आर द वेब ब्राउज़र्स. इसमें एग्जांपल्स क्या हैं? गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, जहाँ से भी हम अपनी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए वेबसाइट सर्च करते हैं, दैट इज़ द वेब ब्राउज़र. Search engine is the web-based tool that enable a user to locate information on the web. Like search engine, Google is a search engine. If I want to search anything, like let's suppose if I want to search any website or any particular information, I want to search about antonyms and synonyms, I will write only antonyms and synonym, and it gives a list of websites which includes my topic, right? तो सर्च इंजन का क्या काम है? अगर आपने सिर्फ टॉपिक भी दिया है, अगर आपने वर्ड भी दिया है, तो उससे वो रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, सारी वेबसाइट, लिस्ट ऑफ वेबसाइट आपके सामने डिस्प्ले कर देना और वो सारी चीज़ें आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना. I already had explained about the web page. This is the first page, also known as the landing page. A home page is also known as the landing page. Right? And web hosting is the service that allows a web developer to make a website publicly accessible through the internet. वो सर्विस जहाँ से आप अपना पब्लिकली वेबसाइट को ओपन करेंगे, लॉन्च करेंगे, लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाएंगे, वो चीज़ कहलाती है, वो सर्विस कहलाती है वेब होस्टिंग. होस्टिंग का मतलब आप सबको पता है, होस्ट इज़ अ मेज़बान. सो होस्ट जो वेब होस्टिंग है वो आपकी वेबसाइट को पब्लिकली एक्सेसिबल बनाती है, यानी दुनिया भर के लिए अवेलेबल करती है बाय यूजिंग इंटरनेट. And web server is a computer that is responsible for serving a website and all of its content including text and media. Web server जैसे मैंने example दी थी क्लास में भी, ग्रुप ए को जब explain किया था कि हम YouTube को कह सकते हैं कि YouTube का जो मेन सर्वर है उस पर millions of videos हैं. वो वेब सर्वर मैंने अगर अपनी वीडियो अपलोड की है YouTube पे, तो वो YouTube क्या है? मेरा वेब सर्वर है जहाँ से मैं अपनी वीडियो अपलोड कर रही हूँ. ठीक है. इसी तरह से जितने आपकी जो लेक्चर्स अपलोड होते हैं यूट्यूब पे, तो यूट्यूब आपका वेब सर्वर है जहाँ से जिस फोरम से आपके पास वो सारी चीज़ें एक्सेसिबल हो रही हैं. ठीक है. तो ये थी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जो सबसे पहले वो जानना ज़रूरी है. उसके बाद हम HTML स्टार्ट करेंगे. एंड HTML, द इंट्रोडक्शन ऑफ HTML stands for hypertext markup language, which is used to create any web page. ठीक है. And hypertext markup, I will share another screen now. See the introduction. This is the mostly used website for learning HTML. You can also use this by yourself. This is a w3schools.com, right? What is HTML? HTML stands for hypertext markup language, and HTML is the standard markup language for creating web pages. HTML describes the structure of a web page. HTML consists of a series of elements. HTML elements tells the browser how to display the content. अच्छा, ये जब तक हम करेंगे नहीं, जब तक हमें ठीक से समझ नहीं आएगा. ठीक है. सबसे पहले आपको क्या जानना ज़रूरी है कि हम HTML स्टार्ट कैसे करेंगे, राइट?
اسٹارٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس سب سے پہلے ایڈیٹر ہونا ضروری ہے. وہ ایڈیٹر جہاں ہم HTML میں اپنے کوڈنگ کریں گے. ٹھیک ہے. A simple text editor is all you need to learn HTML. سمپل ٹیکسٹ ایڈیٹر یعنی کوئی بھی ایسا سافٹ ویئر جو ٹیکسٹ ایڈیٹر ہو اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں HTML ویب پیج ڈیزائن کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. ویب پیج کین بی کریٹڈ اینڈ ماڈیفائڈ بائی یوزنگ پروفیشنل HTML ایڈیٹرس. ہم کون سا ایڈیٹر یوز کرتے ہیں؟ یوزلی جو ہمارے پاس ونڈوز پہ اویلیبل ہوتا ہے وہ نوٹ پیڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ونڈوز 8 ونڈوز 7 جو بھی ہے اس میں ہمارے پاس نوٹ پیڈ اویلیبل ہوتا ہے اور وہ نوٹ پیڈ کو ہم ایز اے ایڈیٹر یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سمپل ٹیکسٹ ایڈیٹر ہونا چاہیے، کوئی بھی سمپل ٹیکسٹ ایڈیٹر. اب یہ آپ اپنے پاس جائیے گا اپنے کمپیوٹر پہ دیکھیے گا اسٹارٹ بٹن، دین پروگرامس، دین ایسیسریز اینڈ نوٹ پیڈ. رائٹ اٹ ڈاؤن. یہ لکھ لیجئے. آپ کے پاس ونڈوز میں یہ چیزیں اویلیبل ہوں گی. سب سے پہلے آپ نے اسٹارٹ مینیو میں جانا ہے، دین پروگرامس میں جانا ہے. پروگرامس کے بعد آپ کو ایسیسریز پہ جانا ہے، اور جب آپ ایسیسریز پہ جائیں گے تو وہاں آپ کو نوٹ پیڈ نظر آئے گا، نوٹ پیڈ مل جائے گا آپ کو. ٹھیک ہے. انمیوٹ کیجیے اپنے مائکس اور مجھے بتائیے کہ اب تک کی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے سب کو، اور یو کین ریز یور ہینڈ ایز ویل. نوال ابھی تک کوئی کوشچن نہیں آیا بیٹا؟ جی. از اٹ کلیئر؟ اپنے کمپیوٹرز پہ اوپن کیجئے ٹیکسٹ ایڈیٹر، کوئی جو ٹیکسٹ ایڈیٹر آپ کے پاس اویلیبل ہو کوئی بھی. اور یوزلی آپ کے ونڈوز میں نوٹ پیڈ ہوتا ہے، اور یہی اس کا میں آپ کو سیکوینس یہی بتا رہی ہوں کہ اسٹارٹ پہ جائیے، پھر پروگرامس پہ، دین ایسیسریز اینڈ دین نوٹ پیڈ. آپ کو نوٹ پیڈ اویلیبل ہوگا آپ کے کمپیوٹرز پہ. وہاں نوٹ پیڈ جو ہے وہ ٹیکسٹ ایڈیٹر ہے، اور وہاں سے ہم اپنا فرسٹ HTML ویب پیج ڈیزائن کر سکتے ہیں. Yes, any question? Yes. سر مائکروسافٹ یوز کر سکتے ہیں، مائکروسافٹ ایکسل. مائکروسافٹ کیا یوز کریں گے ہم؟ ایکسل ایکسل پہ نہیں ہو سکتا بیٹا، ٹیکسٹ ایڈیٹر. ڈاکیومنٹ. ہاں نہیں، ٹیکسٹ ایکسل تو بیٹا، ایکسل جو ہے وہ کیلکولیشن کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ایکسل پہ ہم کوئی پروگرامنگ کوئی کوڈنگ نہیں کر سکتے. اٹس ناٹ پاسبل. ٹھیک ہے. ہم جو کوڈنگ کرتے ہیں وہ کسی بھی ٹیکسٹ ایڈیٹر پر کرتے ہیں جس پہ ٹیکسٹ ہم لکھ سکیں، اور ہمارے پاس جو ونڈوز میں نوٹ پیڈ ہے وہ بیسٹ ٹیکسٹ ایڈیٹر ہے. ٹھیک ہے. آپ اپنے کمپیوٹرز پہ اوپن کیجئے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کہاں سے آپ کو اپنا ویب پیج لکھنا ہے. نوٹ پیڈ اوپن کر کے اس پہ ڈائریکٹ کوڈنگ شروع کر دیجیے. اٹس ناٹ ویری ڈیفیکلٹ، اٹس ویری ایزی. تھوڑی سی چیزیں ہیں جو آپ کو کلیئر ہونی چاہیے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بیسک پہلا اسٹیپ بتا دیا کہ آپ کے پاس نوٹ پیڈ اویلیبل ہو. وہاں پر جا کر آپ اپنا فرسٹ HTML پروگرام لکھیں گے، کوڈنگ کریں گے. ٹھیک ہے. اینی ادر کوشچن بیٹے؟ اوکے. پہلے ہم نے ٹیکسٹ ایڈیٹر کھول لیا ہم نے. ٹھیک ہے. یعنی ہم نے نوٹ پیڈ کھول لیا. اس کے بعد ہم کیا کریں گے، یہاں پر اپنا فرسٹ پروگرام کوڈنگ شروع کریں گے. اب یہ کیا ہے؟ یہ جو ریڈ آپ کے پاس کچھ ٹیگنگز دی ہوئی ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ HTML ایلیمنٹس ہیں. ٹھیک ہے. HTML ایلیمنٹس ہیں. ایلیمنٹس کیا ہیں اب یہ دیکھ لیتے ہیں. HTML کیا ہے؟ The HTML element is everything from the start tag to the end tag. یہ ٹیگنگ ہے. ٹیگ کریں. ٹھیک ہے. یہ ٹیگنگ ہے. ریڈ سے جو کیا ہوا ہے یہ ٹیگنگ ہے. یعنی ڈفرینٹ ٹیگس آپ کو دیے ہوئے ہوتے ہیں. ان ٹیگس کے اندر آپ کو اپنا کانٹینٹ لکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ڈفرینٹ ٹیگس دیے ہوئے ہوتے ہیں جو ٹیگس میں آپ اٹس TAGS ٹیگس. ٹھیک ہے. ٹیگس کے اندر آپ اپنا کانٹینٹ دیتے ہیں جو بھی آپ کو ویب سائٹ پر ڈالنا ہو. یہ آپ کے ٹیگس ہیں. آل آر دا ٹیگنگ، دیز آر دا ٹیگ. ٹھیک ہے. اور ان ٹیگس کا کام کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے ہم اس کی ٹیگنگ سٹارٹ کرتے ہیں اور اینڈنگ کرتے ہیں. اب یہ ہے فرسٹ نوٹ پیڈ پہ ہمارا لکھا ہوا
फर्स्ट वेब पेज की फर्स्ट हेडिंग्स, ठीक है। डॉक्यूमेंट टाइप DOC, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, और कीप इन माइंड कि हर टैग को हम ब्रैकेट्स में क्लोज करते हैं। ये आप देख रहे हैं ब्रैकेट्स, इन ब्रैकेट्स में हम हर टैग को इनक्लोज करते हैं, और हर टैग स्टार्ट भी होगा और एंड भी होगा, ठीक है। हर टैग स्टार्ट भी होगा और एंड भी होगा। बहुत क्लियरली मैं आपको कह रही हूँ, ये अगर आप चीज़ें अपने पास नोट डाउन कर लीजिए तो आपको बेहतर रहेगा, क्योंकि इसके बाद आपको ये याद नहीं रहेंगी। जो पॉइंट्स हैं वो नोट डाउन कर लीजिए कि एवरी टैग मस्ट बी enclosed within a bracket. It has the starting and the ending. What is the difference between starting and ending tag? स्टार्ट में हम स्लैश साइन नहीं देते, एंड में हम स्लैश साइन देते हैं, एंड दिस स्लैश इंडिकेट्स दैट दिस इज द एंडिंग टैग, यानी यहाँ बात ख़त्म हो रही है, ठीक है। सबसे पहले हमें, अच्छा, हर टैग का स्टार्टिंग और एंडिंग है। देखिए, फर्स्ट HTML स्टार्ट, HTML एंड, बॉडी स्टार्ट, बॉडी एंड, हेडिंग 1 स्टार्ट, हेडिंग 1 एंड, और जो एंडिंग टैग है वो स्लैश के साइन के साथ है। पैराग्राफ स्टार्ट, पैराग्राफ एंड, और दोनों सब जो एंडिंग टैग्स हैं, जितने भी एंडिंग टैग्स हैं, ठीक है, वो सब किसके साथ है? बैक स्लैश के साथ। बैक स्लैश के साथ हम उसको स्टॉप करते हैं, यानी क्लोज करते हैं टैग को। अच्छा, अब इसमें डिफरेंस ये है कि आप ये सारे टैग्स जितने भी देख रहे हैं, ये ओपन भी हो रहे हैं और क्लोज भी हो रहे हैं, लेकिन ये वाला टैग क्लोज नहीं हो रहा। जो ये फर्स्ट टैग है, एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप HTML, डॉक टाइप मीन्स डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक्यूमेंट टाइप क्या है? HTML है, राइट। फर्स्ट हम स्टार्ट किससे करेंगे? हमेशा कोई भी वेब पेज बनाने के लिए हमें स्टार्ट इसी से करना है, यानी हमें सबसे पहले क्या डिक्लेयर करना है कि डॉक्यूमेंट टाइप क्या है। डॉक्यूमेंट टाइप क्या है? HTML, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करेंगे दूसरा टैग, HTML का डॉक्यूमेंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं, HTML यहाँ से स्टार्ट हो गई है, राइट। स्टार्ट की हमने। बॉडी, अब बॉडी क्या है? जितना भी कंटेंट इस वेब पेज के लिए मुझे चाहिए वो बॉडी के अंदर आ जाएगा। लाइक इसके बाद मैं कोई दूसरी अगर हेडिंग देना चाहूँगी, मैं अंदर ही इंसर्ट करूँगी। थर्ड हेडिंग देना चाहूँगी, वो भी अंदर ही इंसर्ट करूँगी, और HTML टैग बिल्कुल आखिर में आएगा, यानी ये एक ओपनिंग टैग है और ये एक क्लोजिंग टैग है। अच्छा, ये बताइए, समझ आ रही है चीज़ आपको? रेज योर हैंड्स। कोई कंफ्यूजन है इसमें? साथ साथ लिखते जाइए प्लीज़। माइक्स ओपन कर दीजिए और मुझे बताइए प्लीज़। ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्टार्ट क्या किया? डॉक्यूमेंट टाइप, यानी कौन सा डॉक्यूमेंट है? HTML का है। HTML हमने स्टार्ट की, एंड किया, प्रोग्राम हमारा यानी कोडिंग हमारी स्टार्ट हुई और एंड हुई। बॉडी में क्या आएगा? जितना भी आपका कंटेंट है वो बॉडी में डिस्प्ले होगा। और फिर हेडिंग 1, यानी पहली हेडिंग मेरी क्या थी? माय फर्स्ट हेडिंग, ये कंटेंट एज इट इज़ डिस्प्ले होगा, हेडिंग 1 क्लोज। फिर पैराग्राफ, माय फर्स्ट पैराग्राफ, इसके आगे आप जितना कुछ भी लिखना चाहें, जो भी कंटेंट ऐड करना चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद वो पैराग्राफ क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट आपका एक नोट पैड पर आपने HTML को की कोडिंग कर ली, ये फर्स्ट कोडिंग है, ठीक है, नोट पैड पे। स्टेप नंबर 3 क्या है? सेव द HTML पेज। आपने जो भी आपने कोडिंग की थी उसको आप सेव करेंगे, सेव एज करके, ठीक है। सेव एज आपने किया, आपने फाइल का नेम दिया index.html, क्योंकि ज़ाहिर है आप HTML में इसको ओपन करना चाहेंगे, HTML डॉक्यूमेंट है तो एक्सटेंशन भी इसका HTML ही होगा, राइट। एनकोडिंग अगर आपसे पूछी जा रही है तो UTF-8 देंगे आप एनकोडिंग टाइप, एंड दिस इज़ यूज फॉर HTML, दिस इज़ यूजुअली यूज फॉर HTML फाइल्स। सेव करेंगे इसे, आपने ये फाइल जो भी आपने नोटपैड पर फर्स्ट वेब पेज बनाया था उसको आपने सेव कर लिया। अब इसको व्यू कैसे करना है? आपने अपने ब्राउज़र पे जाना है, जो आपका ब्राउज़र है, कोई भी ब्राउज़र हो सकता है, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, क्रोम हो सकता है, फायरफॉक्स हो सकता है, कोई भी ब्राउज़र आपने ओपन करना है, वहाँ पर या तो डबल क्लिक कीजिए या राइट क्लिक कीजिए, या फिर
چوز وہ اوپن وتھ کیجیے اور وہاں پر وہ فائل کھول لیجیے جو آپ نے یہ نوٹ پیڈ کی فائل آپ نے سیو کی تھی. یہ فائل آپ ویب پیج پر اپنے کھول لیں گے. ٹھیک ہے, یہ رہی آپ کی وہ فائل index.html ڈیسک ٹاپ پہ سیو کی تھی. وہ اس index.html آپ نے جس نام سے سیو کی تھی index.html یہ یہاں پر اوپن ہو گئی. اب یہ آپ کے ایز اے ویب پیج ڈسپلے ہو رہا ہے. مائی فرسٹ ہیڈنگ ہم نے کیا کیا تھا کوڈنگ میں, مائی فرسٹ ہیڈنگ اینڈ پیراگراف ہم نے کیا دیا تھا, مائی فرسٹ پیراگراف. تو اب آپ یہ آؤٹ پٹ ہے, یہ ڈسپلے ہے آپ کے ویب پیج کا, یعنی آپ کے ویب پیج پر یہ چیز آ رہی ہے. اب اس میں ڈفرینٹ ٹیگس ہوتے ہیں, بہت سارے ٹیگس ہوتے ہیں جس سے ہم کلرز بھی دے سکتے ہیں, جس سے ہم پیج بریک بھی دے سکتے ہیں, جس سے ہم بولڈ اٹیلک انڈر لائن بھی کرتے ہیں, ڈفرینٹ امیجز بھی انسرٹ کرتے ہیں, اور پھر یہاں پر ڈفرینٹ لنک بھی دے سکتے ہیں کسی دوسری ویب سائٹ پہ جمپ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, یہاں پر ہم نے فائل سیو کی, یہ تھا ہمارا ڈاکیومنٹ ٹائپ. اس میں اب آپ یہ دیکھیے کہ زیادہ تر تو ٹیگس ہیں میرے پاس. ڈسپلے کیا ہو رہا ہے ویب پیج پر, مائی فرسٹ ہیڈنگ اینڈ مائی فرسٹ پیراگراف, یہ چیز ڈسپلے ہو رہی ہے. یعنی ٹیگ کے اندر جو کانٹینٹ آپ دے رہے ہوں گے وہ آپ کے ویب پیج پر ڈسپلے ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ ذرا کوڈنگ جو یہ لکھی ہوئی ہے یہ لکھ لیجیے, یہ اپنے نوٹ پیڈ پر لکھیے گا پلیز. دس از یور اسائنمنٹ, آپ اپنے نوٹ پیڈ پر یہ کوڈنگ کیجیے اور اس کے بعد اسے اوپن کیجیے ویب براؤزر پہ, اور آپ دیکھیے کہ آپ کیا اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. یہ تو ایک ایک لائن لکھی ہوئی نا, دس از اے ہیڈنگ, آپ اس میں کیا ڈال سکتے ہیں, کمپیوٹر سائنس یہاں پر آپ نے ڈالا, ہیڈنگ 2 آپ نے ڈالی, ہیڈنگ 1 یہ تھی, ہیڈنگ 2 آپ نے ڈال دی ٹیگ کے ساتھ. ٹیگ اسی طرح دیں گے, 1 کی جگہ ہم 2 لکھ دیں گے. ہیڈنگ 2 کیا ہے, کمپیوٹر ایتھکس. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد پیراگراف میں ہم کمپیوٹر ایتھکس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. ہم اس میں جتنا چاہیں کانٹینٹ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ایک اور چیز ہے ہیڈ, یہاں پر ایک اور ٹیگ آ گیا ہے ہیڈ کا. اب یہ ہیڈ کیا ہے, ٹائٹل ہے, یعنی وہ کانٹینٹ, وہ چیز جو آپ کی ٹائٹل بار یعنی یہاں پر ڈسپلے ہو رہی ہوگی وہ ہم یہاں پر ٹائٹل کے ٹیگ کے ساتھ دیتے ہیں. نوٹ اٹ ڈاؤن فرسٹ. اس کو نوٹ کیجیے سے پہلے, اور پھر مجھے ذرا یہ بتائیے کہ یہ آپ کو کلیئر ہے, سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں, یا اگر کوئی کوشچن ہے تو پوچھیے. Miss, please explain again that what is why we use head tag. ہیڈ کیوں یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے آپ لکھیے, میں ایکسپلین کرتی ہوں. ڈن, ریز یور ہینڈس. یس بیٹا, ہو گیا آپ کا, یہ نوٹ کر لیا آپ نے. اچھا, آپ کی بک میں بھی یہ سارے ٹیگس دیے ہوئے ہیں جو آپ ٹیگس دیکھ سکتے ہیں. میں اس کو اب شیئر کروں گی آپ کے بک کے پیجز. یہ دیکھیے, یہاں پر ہیڈ دیا ہوا ہے, جو بھی آپ پوچھ رہی تھیں نوال کہ ہیڈ کیوں دیا ہوا ہے, ہیڈ کا کیا پرپس ہے. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ہیڈ کے ساتھ یہ باڈی دی ہوئی ہے, باڈی مطلب اندر جو بھی کانٹینٹ ہوگا وہ.
HTML टाइप डॉक्यूमेंट है ये. हेड हम स्टार्ट करेंगे. हेड यानी टाइटल पेज. हेड टाइटल दिया हुआ है, ठीक है. टाइटल की टैग के अंदर ये माय वेबसाइट दिया हुआ है. इट मींस कि दिस इज योर टाइटल, राइट. फिर हमने बॉडी दी है. बॉडी में क्या है, कोई भी कंटेंट आप डाल सकते हैं. वो टैग हम क्लोज करेंगे. हेड का टैग क्लोज किया पहले, क्योंकि हेड जो है वो टाइटल है, उसको हमने पहले ही क्लोज कर दिया. फिर बॉडी का टैग है, फिर उस बॉडी की टैग को क्लोज किया और HTML को एंड में क्लोज कर दिया. देखिए यहाँ पर क्या आ रही है, वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज, राइट. और ये क्या आ रहा है, टाइटल माय वेबसाइट. माय वेबसाइट कहाँ आ रही है, ये देखिए माय वेबसाइट. इट मींस कि ये आपका टाइटल है. नवाल, इज इट क्लियर? ये आपका टाइटल है, जो माय वेबसाइट का नाम आपने दिया है, और जो आपने हेड के बॉडी के अंदर दिया है वो आपका फर्स्ट लाइन ये आ रही है. यानी ये आपका फर्स्ट वेब पेज की एक लाइन है. ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, miss. अब ये यहाँ पर आपके पास डिजाइनिंग एंड फॉर्मेटिंग में सारे टैग्स दिए हुए हैं. टैग्स दिए हुए हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है. इट्स ऑल फ्रॉम योर बुक, राइट. डॉक्यूमेंट टाइप मैंने आपको बताया था क्या है, कि HTML वर्जन है. यानी आप कौन सा डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहे हैं, वो HTML का डॉक्यूमेंट है, तो इट मस्ट स्टार्ट विद एक्सक्लेमेशन मार्क. और ये जो टैग है इसका एंडिंग टैग नहीं होता, ठीक है. इसका एंडिंग टैग नहीं होता, राइट. HTML यानी ये फर्स्ट आपका टैग होगा जिससे आप स्टार्ट करेंगे, एंड एंड्स विद द \HTML टैग. यानी ये जो स्टार्ट होगा वो एंड भी होगा, राइट. अच्छा, हेड जो मैंने आपको बताया कि हेड क्या है, आपका मेन बार पर कंटेंट जो डिस्प्ले हो रहा है वो आपका हेड है, ठीक है. अब ये क्या दिया हुआ है इसमें, मेटा या स्टाइल या स्क्रिप्ट. इसमें हम मज़ीद चीज़ें चेंज कर सकते हैं. यानी इनका कलर चेंज कर सकते हैं, इनका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इनका स्क्रिप्ट चेंज कर सकते हैं. वो सारे टैग इसके अंदर ही आ जाएंगे. बॉडी क्या है, द मेन कंटेंट ऑफ योर वेबसाइट. द मेन कंटेंट यानी आप जो डिस्क्रिप्शन देना चाह रहे हैं वो सारा किस में जाएगा, बॉडी में. जी बेटा पूछिए. ठीक है, ओके. इसके बाद क्या है, टाइटल. जैसे मैंने आपको डिफाइन किया कि जो भी आप टाइटल देना चाहेंगे वो फर्स्ट आपकी वेबसाइट की टाइटल बार पे डिस्प्ले हो रहा होगा, राइट. और इसका भी स्टार्टिंग और एंडिंग टैग होगा. फुटर यानी आप एंड में कुछ देना अगर चाहें तो वो एंड में दे सकते हैं. इसके अलावा ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ का भी एंडिंग टैग होगा. बी आर का टैग क्या करता है, एक लाइन का ब्रेक देता है, ठीक है. जैसे आपने पैराग्राफ 1 स्टार्ट किया, मैं आपको दोबारा उस पर लेके जाती हूँ. पैराग्राफ अगर आपने 1 स्टार्ट किया है और पैराग्राफ 1 एंड हो गया है और उसके बाद फिर पैराग्राफ 2 स्टार्ट किया है, तो पैराग्राफ 2 भी आप एंड करेंगे. और इसके दरमियान में अगर आपको एक लाइन का गैप देना है तो आप ये वाला टैग यूज़ करेंगे BR. ये इसका एंडिंग टैग नहीं होता, इसका सिर्फ स्टार्टिंग टैग है. यानी आपने अगर एक दफ़ा दे दिया है इसको तो उस लाइन का, उस जगह पर एक लाइन का ब्रेक आ जाएगा, ठीक है. देखें यहाँ पर जैसे जिस तरह से मैंने आपको यहाँ बताया, हाँ ठीक है. यहाँ पर अगर मैं एक हेडिंग मेरी आई हुई है और यहाँ से मेरा पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है. यहाँ पर इस लाइन के बाद यानी हेडिंग 1 के बाद अगर नेक्स्ट लाइन पे मैं BR दे दूँगी, BR का टैग दे दूँगी, तो इसका क्या मतलब है, इस लाइन में और इस लाइन में एक लाइन का गैप आ जाएगा, ठीक है. BR का जो टैग होता है उसका कोई एंडिंग टैग नहीं होता, वो सिर्फ स्टार्ट करते हैं. यानी हम सिंपल टैग देते हैं, इसका मतलब है कि लाइन ब्रेक आ जाएगी, ठीक है. इसी तरह से और डिफरेंट टैग्स हैं, लाइक BR ब्रेक देने के लिए. सिंपल B जो आपका टैग आएगा B ब्रैकेट्स में उसका मतलब क्या है, जो कंटेंट इसके अंदर आएगा वो बोल्ड होगा, ठीक है. बोल्ड करने के लिए हम B का टैग देते हैं. I का टैग हम देते हैं इटैलिक करने के लिए. इसी तरह कलर्स के डिफरेंट टैग्स होते हैं, लेकिन दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग. तो आप इसको अभी छोटे प्रोग्राम से स्टार्ट कीजिए, लाइक 2-2 लाइंस या 3-3 लाइंस आप स्टार्ट कीजिए और उसके बाद उसको फाइल को ओपन कीजिए अपने वेब ब्राउज़र पे.
ठीक है. मिस जी बेटा. मिस लाइन ब्रेक से सिर्फ वन लाइन ब्रेक आएगा या फिर इसे और भी जैसे 2-3 लाइन के ब्रेक आ सकते नहीं, हैं? आप फिर उसको दोबारा ब्रेक में देंगी. ठीक है. यानी आप ओके अगर 2-3 आपको लाइंस देनी है तो आप ब्रेक 3 बार टैग डाल दीजिए. ठीक है. ओके. अच्छा, HR का टैग है. अब इसमें बहुत सारे टैग्स हैं, लेकिन अभी आपको बेसिकली क्या करना है, आपको सिर्फ कुछ टैग्स यूज़ करने हैं जो ये मेन टैग्स हैं आपके. ठीक है. मेन टैग्स में एक ये वाले जो टैग्स हैं आपके पेज नंबर 123 पर, डॉक्यूमेंट टाइप HTML, हेड, बॉडी, टाइटल, पैराग्राफ, ब्रेक, ये टैग्स आप यूज़ कीजिए. सिर्फ इन टैग्स को यूज़ करते हुए आप अपना वेब पेज डिज़ाइन कीजिए. उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम इमेजेस भी इंसर्ट करते हैं, हम डिफरेंट लिंक्स भी इंसर्ट करते हैं. लेकिन कीप इन माइंड कि एवरीथिंग इज़ डिस्प्लेड बाय यूजिंग टैग्स. टैग्स के बगैर आप कुछ यूज़ नहीं कर सकते, आप HTML में कुछ नहीं कर सकते. टैग्स उसकी स्पेसिफिकेशन है कि आप HTML यूज़ कर रहे हैं और आप कोडिंग कर रहे हैं फॉर अ वेबसाइट, राइट? तो ये ज़हन में रखिएगा कि इसके जो डिज़ाइनिंग एंड फॉर्मेटिंग में है, इसमें HTML के जो टैग्स हैं वो टैग्स ज़रूरी हैं. इनके बगैर आपका वेब पेज डिज़ाइन नहीं होगा. ठीक है ना? अच्छा, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइए प्लीज़. टैग नेम ज़रूरी है. टैग नेम के बगैर हम कुछ नहीं दे सकते. कोई भी टैग नेम होगा, लाइक बॉडी का होगा, पेज ब्रेक का होगा, पेज ब्रेक का होगा, कोई भी चीज़, यानी कोई भी चीज़ डिफाइन करने के लिए कि ये कैसी होनी चाहिए, हम उसके लिए टैग देते हैं. ज़रूरी है टैग. एनी कंफ्यूजन बेटा? कोई क्वेश्चन? अच्छा, अब ये कोडिंग जो आपकी बुक में है ये भी आप कर सकते हैं. जो वेबसाइट से मैंने आपको नोट करवाई है वो भी आप कर सकते हैं. वो कोडिंग्स करके और उसको वेब ब्राउज़र में ओपन करके देखिएगा आपके पास रिज़ल्ट क्या आ रहा है. फिर आपको मैं मज़ीद जो इसके टैग्स हैं वो आपको एक्सप्लेन करूँगी. पहले आपने सिर्फ कितने टैग्स करने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टैग्स आपको यूज़ करने हैं. ठीक है. और इसमें आप हेडिंग 1 से हेडिंग 1 का टैग भी यूज़ कर सकते हैं. यानी आपको किसी चीज़ की हेडिंग देनी हो तो आप हेडिंग दे सकते हैं. यानी 1 से लेकर 6 तक कोई भी हेडिंग दे सकते हैं आप. ये टैग देखिए, bold, italic, underline. These tags are used to bold, italicize and underline text respectively. अब अगर bold करना है इसे तो किस तरह से देंगे? देखिए, बॉडी दी आपने, बॉडी के अंदर आपको ये कंटेंट देना है. अब यहाँ पर आप वेलकम से पहले बोल्ड का टैग दे दीजिए, यानी ब्रैकेट्स में बी, और फिर आप उसके साथ ही इटैलिक का टैग भी दे दीजिए. यानी एक लाइन में 2 से ज़्यादा टैग्स भी यूज़ हो सकते हैं. 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा टैग्स भी यूज़ हो सकते हैं. अगर इसको मैं बोल्ड करना चाह रही हूँ, इसे मैं इटैलिक करना चाह रही हूँ, तो मैं बी का टैग भी दे दूँगी यहाँ पर और आई का टैग भी दे दूँगी, बट एंडिंग भी होगी उसकी. ठीक है. क्योंकि अगर सिर्फ ओपन कर दिया तो नेक्स्ट भी जितनी लाइंस हैं वो सेम इम्प्लीमेंट होंगी और क्लोजिंग नहीं होगी तो वो वैलिड नहीं होगा. तो यहाँ पर मैं बी का टैग दूंगी ब्रैकेट्स में उसी तरह से जैसे हम टैग्स देते हैं, और फिर इटैलिक का टैग दूंगी आई, और फिर बोल्ड बैकस्लैश का जो टैग है उसके साथ हम बोल्ड को क्लोज करेंगे और इटैलिक को भी क्लोज करेंगे. ठीक है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. आप अब बना के देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा. जब आप ये यूज़ करना शुरू करेंगे फिर आपको लगेगा कि आपको और चीज़ें पता होनी चाहिए. फिर अच्छा, जब आपने एक दफ़ा जैसे नोटपैड में कोडिंग कर ली, ठीक है. अब टेक्स्ट एडिटर क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको उस वेब पेज पे चेंज करना है, कुछ और डालना है. वेब पेज एक दिन में तो नहीं बन जाता ना. आपने आज कुछ बनाया, अब कल आपने सोचा आप इसे चेंज करना चाहते हैं, तो आप उसको टेक्स्ट एडिटर पे जाकर चेंज कर देंगे. ठीक है ना. फिर उसमें मज़ीद चीज़ें इंसर्ट करना चाहते हैं, वहाँ पर इंसर्ट कर देंगे. तो टेक्स्ट एडिटर में होगा जो भी होगा, और वो डिस्प्ले कहाँ पर होगा? आपके वेब ब्राउज़र पे. बेटा आई थिंक बहुत क्लियरली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए प्लीज़.
مس ہاریزونٹل لائن کے جو پیج ہے اس کو 2 ہافس میں ڈیوائڈ کر دیجیے. اچھا کہاں ہے؟ ہاں بولیے. ہاریزونٹل لائن. ہاں بالکل ڈفرینشیٹ بٹوین 2 سیکشنز. یہ ڈفرینشیٹ کریں 2 سیکشنز کو, بیچ میں لائن آ گئی, اس کو ڈیوائڈ کرنے کے لیے تو ہم HR کا ٹیگ دیں گے. اور مس جو ہیڈنگز ہیں 1 to 6 یہ بھی دوبارہ ایکسپلین کر دیں. دیکھیں ابھی آپ نے یہاں پر جو ہم نے پیج تھا اس میں ہیڈنگ ڈالی تھی؟ نہیں رک جائیں میں شیئر کرتی ہوں, رکیے. دیکھیے ہیڈنگ 1 ہے, ٹھیک ہے. ہیڈنگ 1 آپ نے فرسٹ ڈال دی, اس کے بعد اس کا پیراگراف آ گیا, یعنی اس کے انڈر آپ کو جو بھی چیزیں ایکسپلین کرنی ہے وہ آپ نے ایکسپلین کر دی. اب آپ کو مزید ہیڈنگز ڈالنی ہے. اب ہیڈنگ 1 اگر ہے تو اس کے ساتھ بولڈ بھی آ سکتا ہے, بولڈ کا ٹیگ بھی آ سکتا ہے, اٹیلک کا ٹیگ بھی آ سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کے بعد وہ ٹیگس کلوز ہوں گے ہیڈنگ 1 کے اندر ہی اندر. پھر پیراگراف آ گیا. اب آپ نے ہیڈنگ 2 دینی ہے. مائی فرسٹ ہیڈنگ تھی فرسٹ ہیڈنگ, پھر آپ نے ہیڈنگ 2 کہہ دی مائی سیکنڈ ہیڈنگ, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اس کا پیراگراف ڈیفائن کر دیا. پھر اسی طرح تھرڈ ہیڈنگ بھی آپ دے سکتے ہیں. تو آپ اس میں ملٹیپل ہیڈنگس دے سکتے ہیں ایک ویب پیج پہ, رائٹ. اوکے ٹھیک ہے چلیں بیٹا, پھر انشاءاللہ ہم اس کو کلاس میں مزید کریں گے, اس کا ریٹن ورک بھی. اور آپ لوگوں کو میسج ڈیفینیٹلی مل گیا ہوگا کہ پریکٹیکل شروع کروانے ہیں, تو پلیز کیپ یور فائلز ود یو. اپنے ساتھ رکھیے فائلز, اور وہ پریکٹیکل بکس اپنے مس ساتھ رکھیے. جی بیٹا بولیے. مس پریکٹیکل بکس بھی لانی ہے. بالکل لے کر آئیے. اوکے ٹھیک ہے چلیں, پھر انشاءاللہ منڈے سے پریکٹیکل سے اسٹارٹ کریں گے. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.